you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So, what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight for success. Subscribe now. Hello dear students, welcome to OL Expert. OL Expert, that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics. So we were studying optics. In ray optics we were studying optics, and in optics we were studying about ray optics, and in ray optics we were studying about phenomena of refraction, and in refraction in our previous session we studied about the linear magnification and power of lens. In today's session we are going to draw the images with the help of lens. Which lens we will prefer first? First we will draw the images with the help of convex lens, and then later on we will discuss the images which will formed with the help of concave lens. So this is the agenda for today's session. Once again, before starting the session, I would like to remind you that if you want the PDF note of this topic or this particular topic, that image formation with the help of mirrors, with the help of lenses, there is much confusion between mirror and lens because most of the formulas are very similar, okay, as you have seen in linear magnification and in mirror and in lens formula and mirror formula, all those are very similar to each other. Okay, coming back. So what is our today's session's discussion? We will form the images with the help of convex lens, and then later on we will form the images with the help of concave lens. So before starting the session, what I always remind you that if you want the PDF note of this particular topic, then you can visit our website, which is www.olexpert.org.in, where you will get not only the PDF of this particular topic, but you will also get the NCERT solution. Along with this, you can get the previous year board questions which have been asked very repeatedly, and you will get the solution of those questions. Along with this, you will get a real-time mock test series by attempting which you will able to know that what is your level of preparation. Okay, all this information was very necessary for you, so that I conveyed to you. Now coming back, before coming back, one more thing I missed, that if you are not going repeatedly on our website, then you can download our app too, which is available there on Play Store, OL Expert, right? And don't miss to like and subscribe our channel as soon as possible or immediately. So let's start today's session. What we are going to discuss today: image formation with the help of convex lens. This is our today's topic. So first of all, we will keep the object at different locations, and then we will find where we will get the image. Have you got it? We will keep the object at different locations and we'll see that where the image will be formed. So first case is here. When object is kept at infinity. Right? This is the first this is the first point, when the object is kept at infinity. So let's draw a convex lens. This is the convex lens. This is the principal axis of convex lens. This is optical center, okay, and the rays are coming from infinity, means object is at infinity. So u is equal to infinity.
Okay, when the rays comes from infinity, they will be parallel to the principal axis. So the rays are parallel to the principal axis like this. Okay, now where we will get the image? For this we know the lens formula, and that is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So from here 1 upon v is equal to 1 upon f plus 1 upon u, and here u is equal to infinity, राइट? यहाँ पे u क्या है? इन्फिनिटी है, तो u की जगह पे इन्फिनिटी अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, या फिर हम कह सकते हैं v कहाँ पे मिलेगा? f पे, यानी जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? फोकस पे। तो ये जाके फोकस पे मिलेंगी, ये यहां पे हमें इमेज मिल जाएगी फोकस पे, राइट? कैसी होगी ये इमेज? बहुत ही पॉइंट साइज की होगी, बहुत ही छोटी सी इमेज, पॉइंट साइज की इमेज होगी, ठीक? कहां पे मिलेगी? फोकस पे। ओके, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही, ठीक? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो हमें मिल रही है इमेज। फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस डिस्कस करते हैं यहां पे। लेट द सेकेंड केस, ठीक? अब इधर देखो, अगर हम कोई लेंस लें, समझो ये लेंस है, ठीक? तो सबसे पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये फोकस होगा, फर्स्ट फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक? ऑप्टिकल सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी सी से डिनोट करते थे, इसलिए अगर हम इसको एफ लिख रहे हैं तो इसको 2f लिख देते हैं। ये है एक्चुअली सी, आर क्या होगा? 2f से सी के बीच की डिस्टेंस, ठीक? तो ये f, ये c, या फिर 2f मान लिया यहाँ पे, क्योंकि 2 बार c रिपीट हो जाएगा, तो 2f मान लिया, और ये इंफिनिटी, और इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, यानी अवे फ्रॉम 2f। तो सेकेंड केस हमारा क्या है? when object is kept away from 2f। 2f एक्चुअली क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, ठीक? ना लिखे हम, समझ जाओगे, इतने समझदार हो। when object is kept away from 2f, ओके? देखते हैं इस केस में क्या होगा। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर C, ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये सेकेंड फोकस हो गया, ठीक? 2f हो गया, और यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी से बाद में, 2f से पहले, ठीक? इंफिनिटी और 2f के बीच में, या फिर हम इसको कह सकते हैं अवे फ्रॉम 2f। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट से एक रे गई, ये स्ट्राइक हुई यहां पे, इंसिडेंट रे, ठीक? दिस इज द इंसिडेंट रे। ज्यादा मोटा हो गया, ये इंसिडेंट रे गई और स्ट्राइक हुई, ठीक है? अब यहां पे 1 अपॉन v लेंस फार्मूला फिर से हम लगाते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक? तो 1 अपॉन f ये इस तरफ अगर हम भेज दें तो हमें 1 अपॉन v क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू u प्लस f, ये मिल जाएगा, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? uf अपॉन u प्लस f, ये हो जाएगा uf अपॉन u प्लस f। अब u की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? 2f से ज्यादा, ग्रेटर देन 2f, u इज ग्रेटर देन 2f, ठीक? तो v क्या होगा? v पॉजिटिव होगा, है ना? v पॉजिटिव होगा, यानी इस तरफ बनेगी इमेज। तो ड्रा कर लेते हैं इमेज, कैसी इमेज मिलेगी हमें?
ये एक हम रे यहां से लेते हैं और यहां रिफ्रैक्ट होने के बाद ये गई, और दूसरी रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे गई, और हमें जो इमेज मिलेगी, थोड़ा सा इसको, एक मिनट, हमें जो इमेज मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, ये प्रॉब्लम होती है डिजिटल बोर्ड में। एक बार हम फिर से इसको ड्रा करते हैं, ठीक, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट से कोई रे गई, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो गई, और ये गई कोई दूसरी रे जो यहां पे कहीं पे इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हुआ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अनडेविएटेड होगी, तो यहां पे हमको मिल गई इमेज, ये मिल गई इमेज। ठीक, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो होगा ये F और 2F के बीच में होगा। ये 2F है, ये F है, तो F और 2F के बीच में इमेज कहीं फॉर्म हो रही है। ठीक, F और 2F के बीच में इमेज फॉर्म होगी। कहां पे मिलेगी हमें इमेज, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन, स्पेस कम है हमारे पास, बिटवीन F एंड 2F, F और 2F के बीच में इमेज हमें मिलेगी। राइट, तो ये हमको कोई इमेज मिली जो F और 2F के बीच में फॉर्म हुई। कब, जब ऑब्जेक्ट रखा है 2F से अवे। ठीक, ये इमेज फॉर्म होगी। तो ये है सेकेंड केस, और इमेज कैसी है, यहां पे V क्या होगा, V पॉजिटिव होगा, यानी जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, सेकेंड केस। तो ये दो केस है। अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं हम। थर्ड केस क्या होगा, ये हालांकि आप सब पढ़े होंगे, शायद आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में है, सीबीएसई में तो मिरर से है, आईसीएसई में लेंस से है क्लास 10th में। राइट, अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं हम। थर्ड केस, इस बार हम थोड़ा और शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, और रखते हैं ऑब्जेक्ट को 2F पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज kept at 2F, ये केस डिस्कस करते हैं। ये सबसे आसान केस है। ठीक, पहले केस में बहुत छोटी इमेज मिली थी, बहुत ही पॉइंट साइज की। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज थी, मिनिमाइज्ड थी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या होगा, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फर्स्ट फोकस, और ये हो गया सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। राइट, सेकेंड फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां से कोई ले गई, और यह लेंस से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद हो गई रिफ्रैक्ट। ठीक, यहां से ले गई, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब ये यहां पे अंदाजा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो पहली रे से गई और ये गई, और दूसरी रे यहां से गई, अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, तो अनडेविएटेड गई, और यहां पे हमको इमेज फॉर्म हो गई, यहां पे। ठीक, ये इमेज फॉर्म हो गई। ये कहां पे फॉर्म होगी, 2F पे। ये इमेज कहां पे फॉर्म होगी, 2F पे। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पे रखते हैं तो इमेज भी 2F पे मिलती है, इमेज भी 2F पे मिलती है, और उसका साइज क्या होगा, सेम साइज की होगी। ठीक, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा HO, उतना ही बड़ा HI। HO इज इक्वल टू HI, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। और कैसी होगी ये, इन्वर्टेड। और कैसी होगी, रियल, है ना, दिख रहा है ना सब, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। यहां पर भी कैसी थी, पहले
ये जो पहला दूसरा केस है इसमें कैसी है इमेज, इन्वर्टेड है, और जैसे ही इन्वर्टेड हमने बोला तुरंत क्या हो जाएगा, रियल। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड और रियल का कौन सा रिलेशन हमने बताया था पिछले सेशन में, राम और श्याम, सीता और गीता वाला रिलेशन, है ना। अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। ठीक, तो वो रिलेशन से, तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड, तो यानी कैसी होगी, रियल। और रियल की उससे बड़ी पहचान क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो इंटरसेक्शन ऑफ रेज होगा, ये एक रे जा रही है, ये दूसरी रे जा रही है, इनका रियल इंटरसेक्शन होगा। हम मानेंगे नहीं, इमेजिन नहीं करेंगे कि आगे जाके यहाँ पे ये कट करेंगी, बल्कि रियल में जाके वहां पे कट करेंगी, रियल इंटरसेक्शन बिटवीन टू रेज। तो इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। तो ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस पे आते हैं हम। ऑब्जेक्ट को देखो, तुम रियलाइज करो, पहले इंफिनिटी पे था बहुत दूर, फिर थोड़ा पास लेके आए 2f से दूर, फिर तीसरी बार में हम 2f पे रख दिए। ठीक, अब चौथी बार में कहां पे रखें, 2f और f के बीच में। चौथी बार में हम कहां पे रखेंगे, फोर्थ केस, when object is kept between 2f and f। ठीक, ये है हमारा फोर्थ केस। चलिए देखते हैं। ये हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट फोकस, ये हो गया सेकेंड फोकस, और हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में। राइट, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो, जब फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में इमेज मिली थी, तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, 2f से दूर, 2f से दूर। अब इसको जस्ट अपोजिट कर दो, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगी तो इमेज कहां होगी, 2f से दूर। तो इसका जस्ट अपोजिट करना है हमें, यानी अब इमेज हमें कहां पे मिलेगी, ये गई, रिफ्रैक्ट हुई रे, इंसिडेंट हुई, दूसरी रे हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, और ये यहां कहीं इसको कट की, तो इमेज हमें कहां पे मिली, ये इस जगह पे ये इमेज मिली, ए डैश बी डैश। ठीक, ये ए बी था यहां पे, और ये मिल गई ए डैश बी डैश। ठीक, ये इमेज मिली हमें। अब ये इमेज कैसी दिख रही है तुम्हें, इन्वर्टेड, वेरी गुड। तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। कहां पे है, इसकी लोकेशन क्या है, अवे फ्रॉम, ये होगा यहां पे f, यहां होगा 2f। ठीक, तो ये कहां पे मिली है, अवे फ्रॉम 2f। ठीक, और कैसी होगी, रियल, ये भी जा रही है रे और ये जा रही है रे, दोनों का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पे, तो रियल होगी, रियल, इन्वर्टेड और अवे फ्रॉम 2f। और कैसी होगी, मैग्नीफाइड, बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की, इन्वर्टेड होगी, अवे फ्रॉम 2f होगी, रियल होगी और मैग्नीफाइड होगी। राइट, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। अब डिस्कस करते हैं हम कौन सा, फिफ्थ केस। राइट, फिफ्थ केस डिस्कस करते हैं। चलो इसी को और छोटा कर लेते हैं। राइट, यहां पे फिफ्थ केस कहां पे रखा जाए भाई ऑब्जेक्ट, अब हम कहां कहां पे रख चुके हैं, 2f पे रख चुके हैं, 2f और f पे के बीच में रख चुके हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखे थे ना, ये 2f था, ये 2f था, ये f था, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था। अब f पे रख के देखते हैं, when object is at f। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, f पे। देखते हैं कहां पे इमेज मिलेगी। तो ये बनाया हमने कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फर्स्ट फोकस, ये हो गया सेकेंड फोकस, ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट फोकस पे। ठीक, ये ए बी फर्स्ट फोकस पे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट हुई रे, यहां पे टकराई, इंसिडेंट होने के बाद ये चली गई।
सेकेंड रे प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाएगी तो ये यहां से जाएगी ऐसे। अब ये कहां पे जाके मिलेंगी, कहां पे दिख रही है तुम्हें जाते हुए मिली? इन्फिनिटी पे कहीं जाएंगी। ठीक, कहां पे जाएंगी? इन्फिनिटी पे। When object is at F, the rays will found at infinity। ठीक है, infinity पे मिलेंगी हमें रेज। तो ये था हमारा फिफ्थ केस। When the object is at F, the image will be found at 2F। इतने केस एक बार रिवाइज करो। एक बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं लास्ट अपना सिक्स्थ केस लेके। तब तक आप ये 5 केस एक बार रिवाइज करिए। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join. ओके, वेलकम बैक। तो हमने ये 5 केसेस डिस्कस किए। अब लास्ट केस डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर और फोकस के बीच में। अच्छा, एक चीज और इस केस के लिए हम बताते हैं फिफ्थ केस में। ये थोड़ा ध्यान तुम्हें क्या रखना होगा, जैसे मैंने यहां पे ये रेज बनाई, ये रे पैरेलल होंगी तभी जाके इंफिनिटी पे मिलेंगी। ठीक, इन रेज को हमें ऐसे ड्रा करना होगा कि पैरेलल होंगी ये। ठीक, ये पैरेलल एक दूसरे के होंगी तभी ना कहीं मिलेंगी नहीं, इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। ये रे इसके पैरेलल, ये ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, कि ये पैरेलल होनी चाहिए रेस। ये अब कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इंफिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी, पैरेलल जा रही। माना जाता है, एजम्पशन है कि इंफिनिटी पे जाके कहीं मिल जाएंगी, लेकिन मिलती नहीं है, वहां पे भी इंफिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी। चलिए फिर सिक्स्थ केस को डिस्कस करते हैं हम अब। केस नंबर 6। अच्छा, इसकी इमेज के बारे में अब तुम क्या, पता नहीं इमेज कितनी बड़ी होगी, है ना, इमेज मिली ही नहीं हमें, तो हम इमेज का कोई आइडिया नहीं दे सकते। सिक्स्थ केस में इमेज इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। हाँ, ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव मतलब जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि v इस तरफ हम मेजर करेंगे, हालांकि इमेज मिलेगी नहीं तो v पता नहीं कहां पे होगा, इन्फिनिटी ही होगा। सिक्स्थ केस, when object is kept between कहां पे रखा जाए, इसके और इसके बीच में नहीं रखा है, यहीं पे रख देते हैं। फोकस, फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, ये बड़ा स्पेशल केस है, अलग केस है ना, इसलिए स्पेशल है। जो भी अलग होता है वही स्पेशल होता है। बाकी सब में हमें एक ही तरह की मिल रही है, इमेज इसी तरफ जाने पे मिल रही है, पर इसमें कुछ अलग होगा। इसी वजह से ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस केस का खास ख्याल रखना होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फर्स्ट फोकस, ये हो गया सेकेंड फोकस। ठीक, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। सी से डिनोट करें, ओ से ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं तो सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक, इसको सी से डिनोट कर दिया हमने, ऑप्टिकल सेंटर सी। ठीक है, अब की बार ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं हम? फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक, बीच में यानी यहां पे ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। ठीक, अब देखो यहां पे रे गई, स्ट्राइक हुई इंसिडेंट रे, और फिर हो गई ये रिफ्रैक्ट, ये गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये ऐसे जाएगी। ठीक, अब ये रेस पैरेलल नहीं है, हमने क्या कहा था, यहां पे यही ध्यान रखना है। फिफ्थ और सिक्स्थ केस के में ये ध्यान रखना है, यहां पे ये पैरेलल है। अगर इनको हम बैक साइड में भी एक्सटेंड करें तब भी पैरेलल होंगी, लेकिन यहां पे कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कि बढ़ती जा रही है, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगी जरूर, और यहां पे मिल गई। ठीक, तो ये हमें मिल गई इमेज, ये इमेज मिल गई। ठीक,
ये इमेज मिलेगी और पीछे मिलेगी, यहाँ पे और पीछे, ये आगे जाके कहाँ मिली, यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ कहीं हमें इमेज मिल गई है। ठीक, ये और ये एक्सटेंड किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगी। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगी। ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश है, इमेज एच आई है, ये एच ओ है। इमेज पहली बार इरेक्ट होगी, और इरेक्ट होगी तो वर्चुअल भी होगी, वर्चुअल होगी, इमेजिनरी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। अब v की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि इसी तरफ इमेज है, तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाके मेजर करनी होगी, तो v की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। तो ये था 6th केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था। तो ये 6 केसेस हैं जिनसे हम इमेज को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगले सेशन में हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए ग्रेट टाइम। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight for success. Subscribe now.